everyone. The mission statement was completely Bharatiya system of education rooted in Bharatiya culture at all levels from primary to the higher education, based on Bharatiya values with Bharat-centric objectives, policy, curriculum, and pedagogy through a five-fold framework of research, awareness, orientation, publication, and networking, and thus achieve a resurgent Bharat. Thank you. अब स्वागत भाषण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर दीपक कुमार सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विकसित भारत स्वामी विवेकानंद की दृष्टि विषय पर व्याख्यान में आप सभी सभी विद्वानजनों, शिक्षाविद, प्राचार्य, निदेशक, युवा आयाम के मंडल के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओं से युवाओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। शिक्षण मंडल की देश भर के विद्वानों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में अहम भूमिका रही है। इस क्रम में वर्ष 2018 में पुनरुत्थान के लिए अनुसंधान इस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया था, जिसमें देश भर के 500 से अधिक कुलपति, आईआईटी और आईआईएम के डायरेक्टर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का उद्घाटन भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि युवा पीढ़ी का सार्थक प्रयास ही देश के उज्जवल भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने युवा आयाम का कार्य प्रारंभ किया है। भारत सदियों से पराक्रम, त्याग और विद्वता के लिए जाना जाता है। यह तीनों गुण युवाओं में डालने का प्रयास ही युवा आयाम को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करता है। युवा आयाम युवाओं को मूल्यवान, विद्वान, संवेदनशील, राष्ट्रभक्त बनाते हुए बौद्धिकता का निर्माण करना युवा आयाम का मुख्य उद्देश्य रहा है। वर्ष 2022 में युवा आयाम द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को केंद्र में रखते हुए स्वराज्य सरकार शोध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देश भर से लगभग 11,000 से अधिक युवाओं ने इस शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता को पंजीयन किया था, जिसमें 500 से चयनित युवाओं को यंग रिसर्चर कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। इस कार्यक्रम में मैं पुनः सभी अतिथियों का, सभी प्रांत के कार्यकर्ताओं का और युवाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अतिथि परिचय के लिए मैं अपनी सहपाठिका सुश्री सुरभि कुमारी को बुलाना चाहती हूँ। Good evening, everyone, and welcome to our event. It is my pleasure to introduce our guest. First, I would like to introduce Professor Poonam Singh Ma'am. She is principal of Bakundi Devi Degree College and also president of BSM. Next, I would like to welcome Professor Anuj Parasar sir. He is secretary of BSM. Now, I would like to welcome Professor Deepak Kumar Singh sir. He is in charge of State Youth Dimension. Next, I would like to welcome Amit Rawat Bhaiya. He is National in charge of Youth Wing and Bharatiya Shikshan Mandal. You see the work of Youth Wing among the youth and Youth Dimension work is done by youth across the country under your guidance. Next, I would like to welcome Professor Beena Singh Ma'am. She is ex-director and a registrar of Kendriya Vidyalaya Hindi Sansthan Agra. Now I would like to welcome Professor Anurag Sharma sir. He is HOD of Faculty of Engineering and Technology and the Vice President of Higher Education Council of Government. Next, I would like to welcome Dr. Nirmala Dikshit ma'am. She is member of State Women Commission Uttar Pradesh. And finally, I would like to introduce our keynote speaker, respected Dr. Nikhil Kant sir. Dr. Nikhil Kant sir is Deputy Director in the Regulation Bureau of All India Council of Technical Education under the Ministry of Education, Government of India, and looks after e-governance with over 2 decades of experiences as a government official. He is known
for his experience and contribution in the field of higher and technical education, management, academic administration, and most importantly, climate crisis. Dr. Kansar prefers to know as a climate enthusiast and a practitioner based on his active involvement in the field of climate crisis adaptation and mitigation. The educational and research journey of Dr. Kansar includes a doctorate degree in management and research papers focusing on the climate crisis, and he is considered the proponent of climate strategy proactivity theory. He has received more than 70 distinguished diplomas from leading global institutions, including MBA, UGC, NET, and the United Nations. Although Dr. Kansar has written more than 250 poems on various contemporary topics, about 50 poems written by him on climate crisis. In his famous poetry collection in Hindi, विश्व निशाने पर है, have been quite popular for spreading awareness on this very serious topic. He runs निशाने पर है. Through recite all of his poetry on climate crisis to create awareness and has had recital on more than 100 occasions across country. Dr. Kansar also spreads awareness about the climate crisis through a YouTube channel named Mate of Climate. Dr. Nikhil Kansar has played the role of reviewer in the IPCC assessment report under the guidance of United Nations. He has been recognized as a climate reality leader by the NGO of Nobel laureate former US Vice President of Mr. A.I. Gore. This highlights his dedication to tackling climate change. I am sure that this interaction with our chief guest will be very valuable for all of us. Thank you for being with us today. Thank you. अब मैं बुलाना चाहूंगी इस कार्यक्रम के युवा वक्ता श्री हार्दिक दीक्षित को। आदरणीय महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे प्यारे भाइयों बहनों और यहाँ पर अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा धन्यवाद जो मुझे आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद और आज के युवाओं के बारे में 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज युवा दिवस है, युवा युग वेग से चले उसे युवा कहते हैं। आज के दिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी जी इतने ओजस्वान और तेजस्वी थे कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने युवाओं के दिल में अपने कार्य को करने के लिए जो आग फूकी थी, वो आज भी भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। युवा वह है जो देश के भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, लोगों को सही मार्ग पर लाने का काम करने वाला ही युवा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि युवा वो होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य की लक्ष्यों को दिशा में काम करता है। हर इंसान को कभी ना कभी अकेले ही शुरुआत करनी होती है, इसलिए किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है, इरादे स्पष्ट हैं और हौसले बुलंद हैं, तो आपके साथ अपने आप ही लोग जुड़ने लगेंगे। यह बात उस समय की है जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के जादू से जिस समय भारत के युवक वेद, उपनिषद एवं गीता, महाभारत और धर्म ग्रंथों की तीव्र निंदा करने लगे थे, और उसी समय विश्व के वेदांत का डंका बजाने वाले और हिंदुत्व और अध्यात्म की प्रतिष्ठा को स्थापित कर उसके प्रचार करने के पर स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटने पर कहा था कि हमारा राष्ट्र भारत गांव और झोंपड़ियों में बसता है, इसके पौरुष को जगाना होगा, गरीबों के खोए हुए व्यक्तित्व की जागृति प्रदान करनी होगी। एकमात्र जागृत देवता हमारा राष्ट्र भारत है, इसकी विराट पूजा ही हमारी पूजा है। सबसे पहले हम देवी पूजा करेंगे, वह भारत माता होंगी। और देशवासियों से कहा कि मैं भारत को हृदय से प्रेम करता हूँ। अब मेरे लिए भारत की वायु और यहाँ तक कि भारत की प्रत्येक धूलि कण स्वर्ग से भी पवित्र है। भारत भूमि पवित्र भूमि है, वह मेरी माँ है
और भारत मेरा तीर्थ है। इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और उनके दार्शनिक विचारों को पढ़ें, समझें, यहाँ तक हो सके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। अब इसके बाद मैं इस कार्यक्रम के अगले युवा वक्ता सुश्री तरु पाठक को बुलाना चाहती हूँ। Arise, awake, and do not stop until the goal is reached. The quote by Swami Vivekananda, which touched our soul and motivated us to work for a cause tirelessly. A very good evening, everyone present here. I am here to tribute a speech to Swami Vivekananda. Born as Narendranath Datta, Swami Vivekananda was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher. As we all know, the theme of the National Youth Day 2024, it's all in the mind. He was a key figure in the introduction of Vedanta and yoga to the Western world. He was the father of modern Indian nationalism who is credited with raising interfaith awareness and bringing Hinduism to the status of the major world religion. It was a decision of the government of India taken in 1984 to celebrate the birthday of great Swami Vivekananda, i.e. 12 January, as a National Youth Day every year. The government considered that the philosophy of Swamiji and the ideals for which he lived and worked could be a great source of teachings for the Indian youth. Swamiji was the first known Hindu Swami to go to the West, where he introduced Eastern thoughts at the World Parliament of Religions in the connection with the World Fair in Chicago in 1893. He stands as a role model for generations in various aspects. Swami Vivekananda believed that India is the blessed Punya Bhumi, the land of virtue, the land where humanity has attained its highest towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality. It is India. According to him, purity and perseverance overcome all obstacles. He suggested taking courage and work on. Patience and steady work, according to Swamiji, this is the only way to get success. Hence, I am here pausing my words with a very beautiful quote by Swamiji. Faith in ourselves and faith in God, this is the secret of greatness. Thank you everyone for being a great and patient audience. अब मैं बुलाना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर निखिल कांत, उपनिदेशक AICT दिल्ली जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने कुछ विचार प्रस्तुत करके हम सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आप सबको आवाज आ रही होगी मेरी? जी आ रही है जी। प्रोफेसर दीपक कुमार सिंह जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी, प्रोफेसर बीना शर्मा जी, प्रोफेसर अनुज पराशर जी, डॉक्टर अमित रावत जी, और इस सेशन में जुड़े हुए हमारे तमाम भाइयों और बहनों, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर आपने दिया है कि इस कार्यक्रम में जब हम स्वामी विवेकानंद जी का 161वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इस बहुत ही अच्छे विषय पे जो सबसे प्रासंगिक भी है, विकसित भारत, और वो भी स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में, इस थीम पे जो मुझे एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया है, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं आप सभी का कि आपने इस वक्तव्य का अवसर दिया और साथ ही आप अपना कीमती समय इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। ये समय थोड़ा सा हमारे लिए भाग दौड़ का होता है और हमारे ऑफिस से आने का भी समय होता है और आप सभी भी उसी तरह के माहौल में होंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर बात करनी हो, उनकी दृष्टि के बारे में बात करनी हो, उनके तमाम जो अलग अलग तरह के उनके वक्तव्य जो हम सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं और उनसे प्रभावित होते रहे हैं, वो सारे वक्तव्य हमारे लिए इस समय बिल्कुल फोकस होके इस विषय वस्तु पे बात करने के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। विकसित भारत या विकसित राष्ट्र की बात करें तो बहुत सारे पैमाने हैं जिसके आधार पे हम पूरे विश्व में विकसित भारत जैसी संकल्पना रखते हैं, विकसित देश, विकसित राष्ट्र जैसी संकल्पना रखते हैं, या विकासशील देश और अल्प विकसित देश। इस तरह की बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम ये जानते हैं कि ये विकसित देश है, ये विकासशील देश है, ये अल्प विकसित देश है।
उन सब में कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें इस तरह से मानी गई जिसपे सहमति या आम राय बनाई जा सकती होती होगी, और जिसमें खासकर जो विकसित देश हैं उनकी बातों को ज्यादा मानते हुए इस तरह की संकल्पना सामने आई होगी, जिसमें हमारे अपने जो विचार हैं, हमारे जो भारतीय विचार हैं, हमारे जो सनातन विचार हैं, उस दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है कि विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना विश्व स्तर पे की जाती है उससे हम पूरी तरह से सहमत हों। और जब कभी इस तरह की असहमति की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि हमारे सामने आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले माह दिसंबर में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत एट 2047 इस तरह की संकल्पना का उद्घाटन किया, और ये कोशिश की जा रही है कि हर एक इंसान, भारत का हर एक नागरिक इस पूरे यात्रा में जुड़े और अपना योगदान दे। जब ये कार्यक्रम की शुरुआत पिछले महीने में हो रही थी तो एक शपथ लेने की भी योजना बनाई गई कि सारे नागरिक कम से कम इन चीजों को समझें कि विकसित भारत का मतलब क्या होगा। उस शपथ को अगर आप ध्यान से, अगर आपने वो शपथ पढ़ा होगा और उस शपथ को सबमिट किया होगा जो पोर्टल है हमारा भारत सरकार का, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं एक उसमें 4-5 पॉइंट्स है जिसको मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ और मेरे लिए एक बार फिर से दोबारा ये शपथ लेने की बात होगी कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। दूसरा, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तीसरा, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। चौथा, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। और पांचवा, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि जो भी थी वो सब कुछ इसमें समाहित है। और जब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज लॉन्च कर रहे हुए थे तो उन्होंने कुछ विशेष चीजों पे विशेष उन्होंने ध्यान दिया और उसको हाईलाइट किया। उसमें जल संरक्षण, बिजली की बचत, खेती में कम रसायनों का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उन्होंने उदाहरण भी दिया। जब हम इधर माननीय प्रधानमंत्री के उद्घोषणाओं की बात करते हैं, उस समय जब हम विवेकानंद जी के दृष्टि की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम सबको याद आती है चीज वो आती है कि उन्होंने अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद में 1893 में जबरदस्त भाषण दिया था। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इस तरह से शुरुआत की थी उन्होंने, और 2 मिनट का समय उन्हें मिला था और उसी में उन्होंने सबसे पहले संबोधन से ही मेरे अमेरिकी भाई बहनों सबको जोड़ लिया था। अद्भुत था ये सबके लिए ये सुनना कि भाइयों और बहनों कैसे कोई पूरे एक ऑडियंस को बोल सकता है। ये काम अगर कोई कर सकते थे तो वो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। उन्होंने कहा था कि जो अपने कर्मों में निष्ठा रखता है वही अच्छा मनुष्य है। और इन चीजों को आज के इस संभाषण में अगर मैं जोड़ता हूं तो एक और चीज मुझे जो याद आती है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया पिछले महीने में तो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये भारत के इतिहास का वह दौर है जब देश लंबी छलांग लगाने जा रहा है। भारत के लिए यही समय है और सही समय है। जब वो ऐसा कर रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज याद आ रही थी जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और लोग हमेशा उनके उस वक्तव्य को याद रखते हैं कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो इन सारी चीजों को जोड़ते हुए जब मैं आज के थीम पे आप सबसे संवाद करने की संवाद तैयार करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे 2-3 और चीजों की याद आ रही थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जब 1984 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस ने ये सोचा और ये संकल्पना दी कि 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया जाएगा, तो भारतवर्ष में ये विचार आया कि सबसे बड़ा एक ऐसा आइकन जो युवाओं का हो सकता है वो कौन हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और तब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 1984 से उनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने इस तरह से अडॉप्ट किया कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा और आज हम उसी दिवस को ही मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं उसमें बहुत ही ज्यादा संख्या में युवा वर्ग के लोग हैं। अब ये 3-4-5 चीजों को जब मैं जोड़ रहा था तो मुझे अपने उस इंट्रोडक्शन को जो हमारी प्यारी एक बच्ची अभी दे रही थी तो मुझे लगा कि उस इंट्रोडक्शन से मुझे दूर नहीं होना चाहिए। और वो इंट्रोडक्शन ये है कि मैं जलवायु संकट पे काम करता हूँ
और जलवायु संकट पे मेरी कविताएं हैं बहुत सारी। जलवायु संकट के से निपटने के लिए बहुत सारी कोशिशें जो हो सकती है उसको प्रैक्टिसेस के रूप में मैं और हमारा पूरा परिवार करता है। और हम ये कोशिश करते हैं ये बताने की कि कहीं कैसे हम छोटे छोटे प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपनी उस जलवायु को, जिसको कभी कभी हम ईश्वर भी मान लेते हैं और कभी कभी धरती माँ और इस तरह की चीजें कहते हैं, बिल्कुल अपना बना के चलते हैं। उस समय हमारे दिमाग में यही होता है कि ये जलवायु भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके प्रति अगर हमारा कोई भी योगदान होता है तो वो किसी और के लिए नहीं, हमारे अपने लिए होता है, हमारी अपनी जिंदगी के लिए होता है। तो विकसित भारत की जब हम बात करेंगे तो न सिर्फ उन सारे पैरामीटर्स की जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आम राय बनी है, बल्कि उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी से जुड़ती है। और जिंदगी से जुड़ने के बारे में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि आप जिंदगी क्यों जीते हैं, हैप्पीनेस के लिए, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। तो एक विकसित भारत जो होगा वो सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स पे खड़ा नहीं उतरेगा, बल्कि जो हैप्पीनेस हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, जो जिस तरह की जलवायु हमारे पास होनी चाहिए, उन सारी चीजों पे हमारा ध्यान होगा। और हम एक ऐसे विकसित राष्ट्र होंगे जिसमें हर एक नागरिक खुशहाल होगा। और खुशहाली सिर्फ और सिर्फ धन धान्य से नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद डाली आती है, और उसमें प्रकृति एक सबसे अहम मुद्दा जरूर है, अहम भूमिका जरूर निभाती है। तो मैं आप लोगों से संबंधित होते हुए ये कोशिश करता हूँ कि मेरी एक कविता जो सबसे पहली कविता थी, जैसा अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया, करीब 250 से ज्यादा कविताएं हैं जो अलग अलग समसामयिक विषयों पे मैंने लिखी है, और उसके माध्यम से अलग अलग तरह के लोगों को जागरूकता जगाने की कोशिश करता हूँ। जो विवेकानंद जी ने भी यही कोशिश की थी कि जागो और उठो और तब तक वो प्रयत्न करते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो मैं कविताएं लिखता हूँ, उसमें 50 कविताएं ऐसी है जो विश्व निशाने पर है, इस टैग के साथ लिखी गई है। और विश्व निशाने पर है जब मैं बोलता हूं तो उन कविताओं के माध्यम से हर एक क्लाइमेट क्राइसिस या जलवायु संकट के पीछे की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फाइनेंस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, जितनी भी तरह की चीजें हैं, उन सबको कैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं, और कैसे वो छोटी छोटी क्रियाएं जो हम अपने आम जिंदगी में करके सिर्फ ये सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपेक्षा नहीं करते हुए कि वो सारे काम करेंगे, हम कैसे एक एक इंसान, एक एक नागरिक कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए रखने के लिए, प्रकृति के अच्छे रहने में, प्रकृति के अनुकूल बने रहने में कैसे योगदान कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैंने कविताएं लिखी है, और उनके माध्यम से भी मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता रहा हूँ। तो एक शुरुआत करते हुए मैं चाहूंगा कि आपको एक मेरी पहली कविता इस 50 कविताओं की श्रृंखला में, जिसका नाम विश्व निशाने पर है, उस कविता से शुरुआत करूं, ताकि आपको लगे कि कविताएं भी एक माध्यम हो सकती है जब आप लोगों को ये बता सकते हैं कि हम ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेज करते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस या जलवायु संकट के पीछे जो चीजें हैं उसको आसानी से हम समझ सकते हैं, अपनी जिंदगी के लिए दूसरों से अपेक्षा नहीं रख सकते बल्कि खुद से अपेक्षा रख सकते हैं, और इस तरह से एक बहुत ही बेहतरीन परिवार, समाज, जिंदगी और पूरी दुनिया बना सकते हैं। तो आपके सामने मैं सबसे पहली कविता जो रखने जा रहा हूं उसका शीर्षक है विश्व निशाने पर है, और मैं चाहूंगा कि आप उसे सुने और आपको ये एहसास होगा कि उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आएगी। इसके अलावा कैसे बाढ़ का पानी जब हमारे घर में घुस आता है और हम कहते हैं कि वो हमारे घर में घुस आया है, तो कैसे हमारी सोच उल्टी होती है। जब मैं आपके पैरामीटर्स की बात कर रहा था विकसित राष्ट्र के बारे में, तो हमारी सोच उसी तरह से थोड़ी सी उल्टी होती है, इस तरह से कस्टमाइज कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय आम राय बनाने के चक्कर में भी, या जो भी कारण हो। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि वास्तव में हम चीजों को उन्हीं रूप में देखें जिस चीज में वास्तव में प्रकृति ने हमें सौंपा है। तो जो पहली कविता है वो ये है, जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है, कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े, हम दोहन करते संसाधन नहीं हमारे, पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे, छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारे,
आने वाले कल को आज हराने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। उनके घर में घुसकर हमने उनको लूटा, खींचा नोचा मारा पीटा ठोका कूटा, छीना छपटी में जो टूटा उनका टूटा, कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा, तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने, किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने, रहे बजाते गर डफली से राग पुराने, स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने, धरती बच जाएगी हम ही जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर की सारी धरा समाने पर है, कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। अब इसमें आप देखेंगे कि विश्व निशाने पर है का मतलब क्या है। विश्व निशाने पर है का मतलब है कि हम निशाने पर हैं, लेकिन हम इस तरह से उल्टा सोचने के लिए कस्टमाइज हो चुके हैं कि जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि विश्व निशाने पर है, ज्यादातर लोग जो है वो अपना ध्यान इन कविताओं पे नहीं देंगे। जैसे हम सेव अर्थ की बात करते हैं, और सेव अर्थ की जब बात करते हैं, वास्तव में धरती को बचाने की कोशिश हम नहीं करते हैं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस समय भी सेव अर्थ बोलते हैं। धरती पे एहसान कर रहे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में एहसान हम अपने लिए कर रहे होते हैं। लेकिन सेव अर्थ करके एक हमारा पाखंड होता है, हमारा ढोंग होता है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर एक कोशिश जो होती है वो धरती को इस तरह से हम रखें जिससे कि हमारी जिंदगी बहुत चलती रहे, एडेप्टिबिलिटी जो हमारी जिंदगी की है वो इस तरह से क्लाइमेट के साथ बनी रहे। इसी तरह से आगे जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और उन वक्तव्यों को जब हम विकसित भारत के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी दृष्टि दिखाई देती है। जब वो कहते हैं कि तुम भगवान में तब तक नहीं मान सकते भगवान को जब तक तुम खुद में विश्वास नहीं करते। इसी तरह से मैं कुछ एक वक्तव्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ले रहा हूं, जो उन्होंने पिछले महीने इस विकसित भारत एट 2047 को लॉन्च करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि देश के प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी और सक्रिय भागीदारी होगी, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने कही थी विकसित भारत के बारे में बात करते हुए, इस संकल्पना को कैसे हम 2047 में जब 100 साल पूरे कर रहे होंगे अपनी आजादी के, तो कैसे हम विकसित भारत के रूप में निकल के आएंगे, उभर के आएंगे। उन्होंने कहा कि आइडिया की शुरुआत आई से होती है, जैसे इंडिया की शुरुआत आई से होती है। तो विकास का प्रयास हमेशा स्वयं से शुरू होता है। और उसी समय मुझे याद आता है कि जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हें एक विचार को चुनना होगा, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, एक विचार को लेकर अपना संपूर्ण जीवन बनाओ, उसे सोचो, उसका सपना देखो, उस पर जियो। अब इन चीजों को जब आपस में जोड़ते हुए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विकसित भारत के बारे में है, भारत के बारे में है, युवाओं के भविष्य के बारे में है। और उसके बाद मुझे लगता है कि इन सारी कोशिशों में क्यों नहीं हम जलवायु संकट के विरुद्ध, उस लड़ाई के विरुद्ध भी अपनी जो कोशिश हो रही है उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि ये युवाएं जब साथ में जुड़ेंगे और एक अच्छी जलवायु के बारे में बात करेंगे तो विकसित भारत में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें अपना योगदान दे रहे होंगे। और हर एक नागरिक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो योगदान जो उनका है वो अपने जिंदगी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने पूरे संपूर्ण विश्व के लिए होगा। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास से। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे घर में एसी नहीं है। मेरे घर में एसी नहीं है, ये सुन के लोगों को आश्चर्य होता है। एयर कंडीशन नहीं है, एफोर्डेबिलिटी है, एयर कंडीशन नहीं है, गर्मी इतनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये क्यों आश्चर्य लोगों को होता है, ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर नहीं है तो नहीं है, उनको बताते हुए मुझे फिर बड़ा संकोच भी होता है कि मेरे घर में कूलर भी नहीं है। तीसरी बात की जब हमारे यहाँ की बिजली बिल के कंजम्पशन की बात करें तो मेरे परिवार में 50-60 यूनिट कंजम्पशन ये महीने में आता है, और दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट छोड़ा हुआ है, तो मेरे यहाँ बिजली का बिल भी नहीं आता पिछले 10 साल से। तो ये सारी चीजें इतनी इतनी छोटी हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसी छोटी चीजों से, ऐसी छोटी छोटे, मैं अभी कुछ एक प्रश्न भी देख रहा हूँ, लेकिन उन प्रश्नों पे बाद में आते हैं। इन छोटे छोटे प्रयासों से कैसे आप अपने विश्व को, अपने जलवायु को अपने योग्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस पाखंड से निकलना होगा कि हम धरती को बचा रहे हैं, सेव अर्थ कर रहे हैं, सेव आवरसेल्फ जैसे कैंपेन की जरूरत है। और उसी तरह से विश्व निशाने पर है, मैंने जानबूझ के ये कविता शुरू की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि विश्व निशाने पर नहीं है, हम निशाने पर हैं। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो युवाओं से जोड़ने वाली बात थी, तो एक मेरी कविता यहाँ पे आ रही है। मैं चाहूंगा कि अगर थोड़ा समय हो तो मैं इसको भी सुनाता हूँ। और ये उनके विवेकानंद जी के जागो वाला जो वक्तव्य है उससे जुड़ा हुआ है, और मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत करता हूँ। जागो देरी ना हो, काल की गति कभी ना ठहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है। एक है दुनिया बांट दिया पर संसाधन सीमाओं से, तड़पे धरती माँ कटने बटने के जख्मों घावों से, उनकी बढ़ी क्रोध की गर्मी ठंड में तपी दोपहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जागो देरी ना हो, काल की गति कभी ना ठहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है। नदियों को है रोक दिया हम, पेड़ों को है काट रहे, अंधकार में है भविष्य की वर्तमान में ठाठ रहे, एक सा भुगत रहे चाहे वो गांव के वासी शहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है। जागो देरी ना हो, काल की गति कभी ना ठहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है। बादल फटने बाढ़ के आने से जीवन दुखदाई है, बदल दिया यूं जलवायु अमृत जल सामत लाई है, सावन में मनोहारी वर्षा की बस याद सुनहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है। जागो देरी ना हो, काल की गति कभी ना ठहरी है, विश्व निशाने पर है फिर भी नींद हमारी गहरी है। इन चीजों को सुनेंगे तो मेरी कोशिश बस ये होती है, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए नई हो। मैं जो सुना रहा हूँ ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि आपसे लेता हूँ और आपको देता हूँ, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो जाती है मेरे यहाँ पे दिमाग लेकिन भाई साहब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर लगा आपका, बहुत बहुत। और तो ये मैं बता रहा था कि आप ही से ली हुई चीज आपको वापस करता हूँ, या फिर ईश्वर से खराब हो, कमजोर हो जाए, मैं तो इसलिए चाहता हूँ ये ऊपर बीच वाला खराब हो जाए, मालूम मुझे मैं संभाल उल्टी हो तो तुम देख रहे थे जी। और मुझे लगता है कि चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी भी जो कुछ कहते थे, आप सुनेंगे तो बड़ी साधारण सी चीजें लगेगी। अगर आपने उनके पीछे छुपी हुई चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन वास्तव में कभी कभी लगता है कि अच्छा इन चीजों के लिए हमने उनको इतना बड़ा मान लिया, लेकिन जब उन चीजों के असर को देखेंगे तब लगेगा कि हमने ही नहीं मान लिया है बल्कि पूरे विश्व ने माना है। और आज से सोचते हैं हम कि 100-150 साल पहले चीजें ऐसी हो रही थी, और आज भी हम यूथ आइकन के रूप में मान के चल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि समय की कमी है, और इन चीजों को बहुत आगे ले जाना मुश्किल इसलिए होगा कि आप सबका समय बहुत कीमती है। मुझे नहीं मालूम है, अगर अमित भाई जी से मैं पूछूं कि क्या मैं एक कविता और सुनाऊं या फिर मैं अभी आपसे विदा लूं, क्योंकि आगे और लोगों को सुनना हो सकता है। वंस मोर एक और
तो अभी कुछ ना कुछ मैं स्वामी जी के कुछ ही वक्तव्य से जोड़ के मैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। और उसके बाद फिर मैं देख रहा था कि अभी 2-3 चीजों को मैं जोड़ रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उस दिन कि आज हर संस्था हर व्यक्ति को मैं आगे और बढ़ता हूँ। हाँ, आज हर संस्था हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा। आपके लक्ष्यों, आपके संकल्पों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए और वो है विकसित भारत। उसमें मैं विवेकानंद जी के एक वक्तव्य को जोड़ता हूँ, उनका उपदेश कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत असर डालती रही है ये, कि मुश्किलें हमें बहुत मजबूत बनाती है, न कि हमें हार मानने का बहाना देती है। तो एक में कविता जो है वो अभी तक जो मैंने कविताएं सुनाई वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डराती है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड वाली कविता जो विश्व निशाने पर है सीरीज की ही एक और कविता है, मैं चाहूंगा कि उसको मैं आप सबके समक्ष रखूं, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी दिखती है और हमारे युवा उनसे कुछ चीजें ले सकते हैं कि कैसे हम अपने जलवायु को अपने उस हिसाब से बना के रखें कि हमारी जिंदगी और हम सबकी जिंदगी अच्छी रहे। इंसान स्वार्थी होता है तो स्वार्थी ही हो जाए इस मामले में कि हम इतना स्वार्थी हो जाएंगे कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए अपने जलवायु को अच्छी रखेंगे। अगर ये सारे के सारे लोग इस तरह से स्वार्थी हो जाए तो हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो एक मैं ये कविता सुनाता हूँ। मैं आपकी कविता को रिकॉर्ड करूंगा सर। जी, मैं आपकी इस कविता को रिकॉर्ड करूंगा सर। रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये उपदेश जैसे ये चीजें बन जाती है। तो एक पॉजिटिव कविता के साथ मैं इसको समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, हम जागे हैं जग को आज जगाने पर है। आज मैंने कोशिश की है कि जागने और जगाने पे ही बात करेंगे, क्योंकि मुझे विवेकानंद जी की वो पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है कि जागो उठो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो मैंने अपनी 3-4 वैसी कविताएं ही निकाली है इसमें, जिसमें सब में जागने जगाने की बात है। तो इस कविता को मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ ले जाना चाहता हूं और मेरे युवा साथी जरूर इसको सुने और उनको ये लगना चाहिए कि अभी चीजें हाथ से निकली नहीं है और वो बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, जानते होंगे। अभी COP28 दुबई में खत्म हुआ है और उसमें भी बहुत अच्छी सारी चीजें नहीं हुई है विश्व के स्तर पे, बहुत ही पॉजिटिव चीजें नहीं हुई है कि हम एक अच्छे जलवायु के बारे में बहुत ही होपफुल हो सके, आशावादी हो सके। लेकिन फिर भी मैं एक पॉजिटिव नोट पे ये कविता सुनाता हूँ। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, हम जागे हैं जग को आज जगाने पर है। उलझेंगे अब उनसे जो उलझाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। सदियों से है साथ रहेंगे साथ हमारे, पानी मिट्टी वायु जंगल और पहाड़े, संसाधन का निर्मम दोहन दीन दहाड़े, रोक लगा निर्बाध लोभ पे बहुत हुआ रे, हाथ हमारे कुछ ना ये बस बहाने भर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। वसुधा को हम कष्ट न देकर धर्म करेंगे, रवि को ना नाराज धरा ना गर्म करेंगे, उनके घर ना घुस लूटेंगे शर्म करेंगे, हक उपभोग हमारा जितना कर्म करेंगे, बूंद बूंद पे ध्यान है दाने दाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। हिम नदों का जम जाना नदियों का बहना, पीर हजारों सह करना पर्वत का ढहना, बहुत जरूरी कुदरत का इस रूप में रहना, धरती मेरी माँ चंदा को मामा कहना, नाते सभी अनादि सदा निभाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है। बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है, हम जागे हैं जग को आज जगाने पर है, उलझेंगे अब उनसे जो उलझाने पर है, जोर समस्या को जड़ से सुलझाने पर है।
ये कविता एक पॉजिटिव नोट पे थी और हम सबको उनसे भी उलझना पड़ेगा, लेकिन उलझने का मतलब लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। उलझने का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हम अपने वैसी क्रियाएं, अपने वैसे प्रैक्टिसेज जो हम करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेज, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेज मानते हुए एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और दुनिया को प्रिस्क्रिप्टिव वे में चीजें समझ में नहीं आती है। जब आप दोनों लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, प्रीच करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझते हैं। आप जब अपने किए हुए कर्मों को लोगों के साथ साझा करते हैं तो लोगों को लगता है, जैसे मेरे साथ होता है हमेशा, कि लोगों को ये लगता है कि अगर डॉक्टर निखिल कांत इस चीज को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, दिस इज वेरी मच डूएबल। और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अपने सही राह पे जा रही हैं। तो हम उस तरह से उलझाने वाले से उलझेंगे और अपने क्रियाओं से उलझेंगे, और इसी बहाने अपने बेस्ट प्रैक्टिसेज को भी सबके साथ साझा करेंगे। और एक विकसित भारत का निर्माण 2047 नहीं बल्कि उसके पहले ही करेंगे, और इसमें हम सब साथ होंगे। इसमें हमारे पास स्वामी विवेकानंद जी की वो सारी दृष्टि हमारे साथ होगी, जिसके कारण आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। आज 150 साल या 161 साल बाद भी हमारे पास दूसरा उतना बड़ा यूथ आइकन नहीं है जितने बड़े हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे भी जुड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुराग शर्मा, उपाध्यक्ष उच्च स्तर परिषद उत्तर प्रदेश। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हम सब विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी भाई साहब आ रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित निखिल कांत जी, दीपक जी और युवा आयाम के हमारे जोशीले अमित जी और अनुज जी और हमारी आदरणीय सबकी प्रिय दीदी प्रोफेसर आभा रानी जी, आभा शर्मा जी, निर्मला जी और सभी भारतीय शिक्षा मंडल के पदाधिकारी, और इस युवा आयाम के द्वारा युवा दिवस पर आयोजित इस परिचर्चा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों। अभी निखिल जी की कविता में सुन रहा था और विश्व निशाने पर है उनका अभिप्राय जरूर था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत निशाने पर है। अब भारत निशाने पर क्यों है? क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की, इसलिए हम निशाने पर हैं। लेकिन हम इतने मजबूत हैं क्योंकि हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद जैसे एक ऐसे महानायक के विचार हैं, इसलिए हम मजबूती से आज भी खड़े हुए हैं। तो आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और निश्चित तौर पर युवाओं का दिन है, तो युवाओं के बारे में कुछ बात आपसे कहूंगा कि अभी मोदी जी ने कल्पना रखी कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा। निश्चित तौर पर भारत 2047 तक या उससे पहले विकसित देश हो जाएगा, लेकिन वो होगा कैसे? आगे वो होगा, उसका जिम्मा सबसे ज्यादा अगर किसी पे ऊपर है तो वो आप जैसे युवाओं के ऊपर है, क्योंकि आप जैसे युवाओं को ही भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना है। और कैसे ऊंचाई ले जाना है, उसके लिए आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ना पड़ेगा। ये जानना होगा कि तो जनसंख्या बढ़ने से ही हम विश्व विकसित नहीं हो जाएंगे। जनसंख्या तो मात्र मानव शक्ति है, मैन पावर है खाली। हमें विकसित होना है नैतिकता पर, हमें विकसित होना है अपनी संस्कारों में, हमें विकसित होना है अपने संस्कृति की विशेषताओं को याद रखने में। और ये एक सत्य है, अगर हम इनको भूले तो हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। ये भी एक सत्य है।
तो हमें आज के युवाओं को ये याद रखना है कि हम जोशीले भी हों, हम संस्कारी भी हों। खाली जोशीले ना हो, हम जोश में अपना होश खोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जोशीले भी होना है, रहना है, और संस्कारित भी रहना है। स्वामी विवेकानंद जी चरित्र पर बहुत कहते थे। उन्होंने कहा कि भारत विकसित होगा, भारत आगे बढ़ेगा, भारत का उत्थान होगा अगर हम चरित्रवान बने। तो आज का युवा चरित्रवान बने, और उस चरित्र को बनाने के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसको मैं 5A कहता हूं। 5 A's। एज मतलब पहला ए आत्मविश्वास का, दूसरा ए आत्मनिर्भरता का, तीसरा ए आत्मज्ञान का, चौथा ए आत्म संयम का, और पांचवा ए आत्म त्याग का। ये पांचों ए या पांचों 5 आ जिसको हम कहते हैं, हम युवाओं को अपने अंदर विकसित करने होंगे, अपने अंदर लाने होंगे, अपने अंदर यथार्थ करने होंगे, अपने अंदर आत्मसात करने होंगे। अब जिस दिन हम अपने ये गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, चरित्रवान बन जाएंगे, निश्चित तौर पर भारत 2047 का भी इंतजार नहीं करेगा, और उससे पहले ही वो विकसित राष्ट्र हो जाएगा या विकसित देश हो जाएगा। तो इन गुणों को हमें अपने अंदर आत्मसात करना है। हम इस गुणों को आत्मसात करके भौतिकवादी नहीं बल्कि आध्यात्म उन्नति की ओर भी मुखर होंगे, आगे बढ़ेंगे। और युवाओं को ये अपने अंदर ये गुण अपनाने ही होंगे, जिससे वो खुद के विकास के साथ साथ एक समाज को बदलने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि जब हम खुद बदलते हैं, हम मानते हैं कि जब हम खुद बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदलेगा। तो पहले खुद को बदलना, फिर समाज को बदलने का प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी ने पुनः उत्थान के बहुत सारे दृष्टि रखी है, अपने विचार है, एक बड़ा लंबा विषय है, कभी समय मिलेगा तो आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के दिन में हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि रोज हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस आता है और आके चला जाता है, लेकिन हमें ये संकल्प लें कि हम जो 5 A's मैंने बताए आपको, उसमें हर वर्ष एक अपने अंदर आत्मसात करेंगे। इस वर्ष आत्मविश्वास को अपने अंदर बढ़ाएंगे, अगले वर्ष हम आत्मनिर्भर के गुण को और प्रबल करेंगे, उससे अगले वर्ष हम आत्मज्ञान को बढ़ाएंगे। ऐसे करके अगर प्रति वर्ष एक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी के दृष्टि को आगे करते हुए, क्योंकि हमारे ऊपर भारत को आगे बढ़ाने की, एक विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी है। भारत क्योंकि विश्व में अग्रणी रहा है, भारत सब कुछ है। और अभी जैसे निखिल जी ने कहा था कि विश्व हमसे डर रहा है, तो विश्व क्यों डर रहा है? आविष्कार है भारत का, गीता में मानवता का ज्ञान है भारत, संपूर्ण विश्व का आधार है भारत, राम है भारत, राम में है भारत, विश्व का कल्याण है भारत, फिर क्यों अज्ञान से वंशीभूत है भारत? अरे उठो, यह संसार है भारत, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है भारत। तो मैं आज के दिन आप युवाओं से निवेदन करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के कथन उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, इसको अपने जीवन के अंदर पिरोएं, अपने अंदर आत्मसात करें। आप भी आगे बढ़ेंगे, भारतवर्ष भी आगे बढ़ेगा और अपनी मंजिल को, ये देश ही नहीं आप भी जल्दी प्राप्त करेंगे। यह अपने वाक्यों को मैं आपके बीच रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन प्रोफेसर बीना शर्मा जी को, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की पूर्व निदेशक हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। सभी को मेरा नमस्कार।
आज भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम ने युवाओं के लिए एक ऐसा मंच दिया है जिस पर उप निदेशक एसीटीआई दिल्ली के माननीय निखिल कांत जी को सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि जब तक हमारे देश में ऐसे युवा हैं, वो चाहे जिस किसी भी पद पर नौकरी कर रहे हों, लेकिन उनके मन में एक ज्वाला जगती है। वो जो कहते हैं वो कहते ही नहीं है। जब आपने कहा कि मेरे घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि क्यों हमारे मन में ये बातें रहती हैं कि कोई व्यक्ति इन भौतिक सुख सुविधाओं से ही बड़ा होता है। सच में आपकी कविताएं जन जागरण कराने वाली हैं। उन्हें पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, उन्हें कई कई बार गाया जाना चाहिए। अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज अमित जी ने दोनों वक्ताओं के रूप में ऐसे दो सुंदर वक्तव्य हम सभी को सुनने के लिए दिए हैं, जिससे हम सभी भरे पूरे हो गए हैं। विकसित भारत का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का ही स्वप्न ही हम सबका स्वप्न बन गया है। 2047 बहुत दूर है। लगता है कि आप जैसे युवा यदि एक साथ मिल जाएं तो उससे 10 साल पहले जाकर ही हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस वर्ष की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, अर्थात आप जो सोच लेते हैं उसे अवश्य पूरा कर लेते हैं और आपको अपने लक्ष्य से कोई नहीं डिगा सकता। पर पता नहीं हम लोग अपने मन में क्यों मान कर बैठते हैं, यदि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो A+B+C+D बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण मेरा काम नहीं हुआ है। मुझे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता बहुत, चूंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ तो अपनी बात कहते हुए कविताएं अनायास याद आ जाती हैं। जब वो आग अंतर में लिए पागल जवानी कविता लिखते हैं और युवाओं को झकझोरते हैं, लाल चेहरे हैं नहीं, लाल किसके। अरे जब तक आपके अंदर जोश नहीं है, जब तक आपके अंदर वह आग नहीं जलती, जब तक आपके अंदर अपने देश को विकसित भारत बनाने की बात नहीं जलती, तो काहे क्या प्लान है। ऐसे युवा इस देश को नहीं चाहिए जो भरी जवानी में पिन पिनाते हुए अपना जीवन जीते हैं, जो मरने की बात करते हैं, जो आत्महत्या जैसे नैराश्यपूर्ण विचारों को रखते हैं। उनको सोचना चाहिए हम कितना जिए उतना आवश्यक नहीं होता, हम कैसे जिए ये हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। और जब हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति हो, जो 39 वर्ष की उम्र में ही वो करके दिखा गए कि आज 160-61 साल के बाद भी वो यूथ आइकन है। आखिर ऐसा क्या था विवेकानंद जी में जो उन्हें विवेकानंद बना पाया। तो हमें नरेंद्र से लेकर विवेकानंद की यात्रा के उन प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। हमें उनके गुरु राम कृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि नरेंद्र जैसा नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास करता ही नहीं था, किसी को मानता ही नहीं था, वो कैसे एक दिन रामकृष्ण परमहंस जब उन पर हाथ फेरते हैं उनके वशीभूत हो जाता है, माँ काली का उपासक हो जाता है। कितने छोटे छोटे जीवन के प्रसंग होते हैं जो व्यक्ति को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। हम भूल चुके हैं, हमें केवल अपनी भौतिक संपदा दिखती है, हमें अपना विस्तार उसमें दिखता है कि मुझे कितने का पैकेज मिल जाए। हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि हमें अपने देश को कहीं आगे लाने की बात करनी है, हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमारे पास अधिकतम भौतिक सुख सुविधाओं का भंडार लग जाए। यह देश आज के युवाओं से बहुत बड़ा स्वप्न संजोए हुए। वह जानना चाहता है, पूछना चाहता है आज के युवाओं से कि आप विवेकानंद को इतनी बार पढ़ते हैं, उनके 2-4 आदर्शों को क्यों अपना मोटो नहीं बना पाती। निडर होना सीखो, और जब तक डरते रहोगे परिस्थितियां तुम पर हावी रहेंगी। मुसीबतों से मुख मोड़ने से, पीठ देने से काम नहीं चलता, उनसे जूझना होता है। और विवेकानंद तो जीवन के एक ही प्रसंग से सीख गए थे। मैं उस प्रसंग को आपसे साझा करना चाहती हूँ। जब वे एक सन्यासी के साथ जा रहे थे और बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ा
और वे भाग रहे थे तो दूसरे सन्यासी ने कहा, नरेन भागो मत, उनका डटकर सामना करो, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो। परिस्थितियों से पीठ देने से काम नहीं चला करता। जब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं होती, प्रश्न नहीं उठते, तब तक सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। राष्ट्रीय युवा दिवस पर फिर से उन प्रसंगों को दोहराना आवश्यक है जो नरेंद्र को विवेकानंद बनाते हैं। युवा शक्ति देश का प्राण है, उसकी धुरी है, पूरा विश्व उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। उठो जागो और मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। वे युवा शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को गोल गोल घुमाने का अद्भुत साहस रखती है, उन युवाओं को मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता की कुछ पंक्तियां लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगी। यह विकसित भारत का स्वप्न घर में बैठने से, सुविधाओं के मध्य आनंद लेने से पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर आना होगा और उस बूंद को याद करना होगा जो भरे बादलों की गोद से, भरी सुख सुविधाओं से निकलती है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या गिरूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी जल अंगारे पर किसी, या क्यों पड़ूंगी मैं कमल के फूल में। परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदल गई और एक बहुत सुंदर हवा उस ओर आई और उसे समुद्र की ओर ले गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खिला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। ये कंफर्ट जोन का छोड़ना है। घर छोड़ने का अर्थ लिटररी शब्दों में घर छोड़ना नहीं हुआ करता। हम अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। देश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, देश को विकसित बनाना हमारा सपना है। स्वामी विवेकानंद हम सबके आदर्श हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन को समाप्त करती हूँ। मुझे इस मंच पर अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अनुरोध करती हूँ। नमस्कार बीना जी। नमस्ते निर्मला जी, कैसी हैं? बढ़िया, आप बहुत सुंदर उद्बोधन अध्यक्षी है आपका, बहुत शानदार। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर अनुज पारासर से कि वे सभी प्रतिभागियों एवं मुख्य अतिथियों की उपस्थिति के लिए कृतज्ञता जाहिर करें। आज भारतीय उच्च मंडल ब्रज प्रांत के मदन मोहन मालवीय मंडल एवं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आगरा कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा जो ये अपना विवेकानंद जी के युवा दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम की जो रचना जिन्होंने की, अपने भारतीय उच्च मंडल के अखिल भारतीय युवा आयाम श्रीमान अमित रावत जी को, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम संपूर्ण हो पाया। उसके बाद मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माननीय डॉक्टर निखिल कांत जी जो कि उपनिदेशक है AICTE दिल्ली के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी वाणी से, अपनी कविताओं से अपने यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को लाभान्वित किया और उनकी जो कविताओं में एक जो बात है, जैसे उन्होंने बताया कि स्वयं करने से चीजों को किया जा सकता है, उस तरह से हमारे बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुराग शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना समय निकाला। उन्होंने जो आ दिए, 5 आ दिए, निश्चित रूप से बच्चे उनको अपने जीवन में उतारेंगे और इस वर्ष उस आत्मविश्वास से प्रारंभ करके अंतिम 5 आ का वो पालन करेंगे। इसके बाद आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर बीना शर्मा जी, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे तो आपका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता ही है,
किंतु आज आपने हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन स्वीकार किया और उसके बाद बहुत अच्छा एक उद्बोधन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज दो युवा वक्ता जिनको आमंत्रित किया गया था, जिसमें हार्दिक दीक्षित जी और सुश्री तरु पाठक जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो वक्तव्य था उससे निश्चित रूप से जो युवा इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उन्हें एक एहसास हुआ होगा कि वो भी इस तरह से कुछ उद्बोधन दे सकते हैं या अपने जीवन में विवेकानंद जी को उतार कर लाभान्वित कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित निर्मला दीक्षित दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केएनआईटी सुल्तानपुर से प्रोफेसर राजीव उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, जो कि निदेशक है केएनआईटी सुल्तानपुर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अभी ईशान कॉलेज से वहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर पंकज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही अपनी छात्रा है, अपने आगरा कॉलेज छात्रा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी छात्राओं को, छात्राओं का, युवाओं का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे लगे। अब मैं अपनी सहपाठिका अर्चना से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रार्थना एवं कल्याण मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन करें। हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठेंगे। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततो अधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम। सभी को राम। बहुत अच्छा लगा आप लोग मिलने, हमारे साथ जुड़े। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को बताएं। सभी को